Very good evening, one and all present over here. I, Pooja, welcome our participants in AIF webinar, state series webinar, rather, I would say. We welcome you all in our webinar. Today's webinar is gonna to be on stay motivated 24/7. Yes, dear audience, हमारे students, or we can say our children, in fact, they do not know the ways that how they can get motivated throughout time. उनको थोड़े से लेक्चर्स अगर हम देते हैं क्लासरूम में, कुछ किसी तरह की इंस्पिरेशन देते हैं, तो वो इंस्पिरेशन थोड़ी देर के लिए स्टे ऑन रहती है, और आफ्टर 1 or 2 days it gets disappear. So we have found out some ways wherein we can just tell them that how they can be motivated 24/7. So for the same, we are going to proceed. So once again, I'm very thankful to our today's guests, Archana ma'am and Jyotika ma'am, जो आज के हमारे resource persons हैं. Thank you so much for being there with us, Archana ma'am and Jyotika ma'am. So before My pleasure. that, Thank you for having us, ma'am. thank you, ma'am. Thank you. So before that, we proceed with this session. With today's session, I would like to introduce you all with our both resource people. Archana ma'am, she is from New Delhi. Archana ma'am, we are very pleased to have you here in our webinar. Thank you that you accepted our request to be here. Archana ma'am is PGT Commerce. She is a retired and very experienced teacher, AIF resource person. She's from New Delhi. और ज्योतिका मैम हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव से. ज्योतिका मैम भी PGT Physics हैं. She is AIF resource person. Thank you so much. I'm very thankful on the behalf of AIF platform that both of you have received our invitation और आपने अपना contribution एक society को देने के लिए अपने आप को available किया. Thank you so much. And of course, yes, how can we forget that AIF platform, which is founded by our respected Matthew sir, जिनकी वजह से हम सब यहाँ पे connected हैं. So I extend my heartiest thanks even in his absence for connecting us so well and for giving us all the opportunities जो भी उन्होंने हमें इतने मौके दिए so that we can go ahead with so many things all together. So my dear audience, आज का webinar क्योंकि ये state series पे है, तो आज का webinar हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 80% हिंदी में और 20% इंग्लिश में. But before we proceed it, I would definitely like to show you one video. हमने कोविड टाइम देखा है और उस कोविड टाइम में बहुत सी फ्लक्चुएशंस भी देखी हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत लाइफ्स एंड डेथ्स को स्ट्रगल करते देखा है, बहुत से लोगों को ऊपर उठते भी देखा है और बहुत से लोगों को नीचे जाते भी देखा है. There were so many things. तो देखिए कि इस वीडियो में आपकी लाइफ के साथ क्या कनेक्टिविटी जुड़ती है. So let's just watch and observe it a little bit. 2020. The Red Indians believed in a beautiful story. I hope it's audible. The story said that within every human, Yes, there ma'am. exist two wolves, constantly at battle with each other. One wolf is evil. He's angry, sad, lazy, greedy, and full of self-pity. The second is good. He's joy, peace, faith, kindness, and action. You know which one wins that battle? The one that you choose to feed more. Life is always going to be full of choices. Choices between feeding the evil wolf or feeding the good wolf. The COVID-19 situation has revealed the true character of everyone around us. The fearful are not focusing on the positives. Is there a possibility the spread was intentional? The kind ones are helping out. The brave ones are still working. They're being loyal to their duties. But if you're stuck at home, then you only have one duty:
to feed the good wolf. The good wolf is made up of good habits, a balanced, healthy lifestyle, a life where you always offer help to those who need it, a life full of learning and growth. This lockdown phase is a break from the usual rat race of human society. If you have a phone in your hands, you're blessed to be more comfortable than most people living through this same dark phase that you're living through. There is no work for them in because the factories are closed. There is a complete lockdown. But their suffering isn't in your hands. The only thing in your hands is the choices you make today. If you're blessed enough to be at home, use these blessings to make the present meaningful and the future more positive. The purpose of life is to constantly grow and constantly spread happiness. Happiness is an outcome of thought. Thought is an outcome of habit. And habit is an outcome of the choices you make today. Feed the good wolf today. Use this phase for growth and not fear. Dear audience, आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ connect किया होगा, and it might be, a little bit emotional for you as well. हाँ, बहुत जरूरी हो जाता है हमें हर टाइम अपने आप को एक पॉजिटिविटी में लेके आना, बिकॉज हमारे साथ और बहुत से लोग जुड़े हैं और इस सब के लिए जरूरी हो जाता है how we can stay motivated. So let's proceed with today's webinar. Let's begin it with Jyotika ma'am and see that what she is hidden in her basket. Jyotika ma'am, over to you. We would love to hear you. Thank you so much, Pooja ma'am. Thank you for having me. Okay, ma'am. So from your video itself, let me start. It is, if it is to be, it is up to me. जैसे हमने इसमें भी दो wolves को देखा, so it is up to me which one to choose. हमें जो चूज करना है हम उसी को चूज करेंगे एंड स्ट्रेंथन करेंगे. अगर मुझे बैड वुल्फ को चूज करना है, बैड हैबिट्स को करना है, वही हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आप में से कई होंगे जो पेरेंट्स हैं, आप में से कई टीचर्स हैं, आप में से कई मदर्स हैं, विच इज अ मल्टीटास्कर जॉब फॉर एवरी वन ऑफ अस. तो उसके लिए मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो हमें 24/7 चाहिए हर समय. And it is not even possible, I'll say. It's very challenging. We say, okay, stay motivated. It's easy to stay motivated. हमें सारे काम करने हैं. We have new joinings, new beginnings. नया सेशन स्टार्ट करना है. हमारे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं. एज अ मदर, बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं तो उनका नया स्टार्ट है. हमें अलग से एक टेंशन. तो उसके लिए क्या मोटिवेटेड रहना 24/7? इज इट एक्चुअली इजी? बहुत आसान है. I'll say yes or maybe no also. So let's see whether it's easy for us or it's a challenging job. Undoubtedly, it's a challenging job for all of us. आपको हर नई शुरुआत में बड़े hurdles आते हैं, बहुत obstacles आते हैं. But what we prioritize, what we choose is the major goal, which majorly demands and वही मायने रखता है. तो शुरू करते हैं. And with this, let's start. So this is, are you ready for the upcoming session? So as teachers, parents, जब आपका भी बच्चा नए सेशन में जा रहा है, so क्या वो एक्चुअल में रेडी है और इट्स जस्ट बुक्स नहीं आई, बैग्स नहीं खरीदे? जो बच्चों को बड़ा क्रेज होता है, नाउ आई हैव न्यू बुक्स, न्यू यूनिफॉर्म, न्यू पेंसिल बॉक्स, everything new and new, and they are really very enthusiastic rather than fear of going to the school. बहुत enthusiastic. और इस साल after being in pandemic for 2 years, ये साल तो वैसे ही हमारे बच्चों के लिए बहुत enthusiastic है. तो उस enthusiasm को बनाए रखने के लिए क्या हम उनको अच्छा गाइड कर रहे हैं? तो हमें एक अच्छा रोड मैप, a right road map is required. They might have many ifs and buts in their mind. आज मैं ये पढ़ूंगा, कल मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं पहले स्कूल में एंट्री करके आई हैव टू मार्क एन इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ माय टीचर. वो टीचर 2 साल से मुझे सिर्फ ऑनलाइन देख रही है. कहीं फियर के मारे नहीं गए,
क्यों? क्योंकि मे बी कुछ प्रिपेयर नहीं थे, कहीं इसलिए नहीं जा सके क्योंकि पैंडेमिक के कारण हमारे पेरेंट्स ने या हमने ही एज अ प्रोटोकॉल वी अवॉइडेड देम एट सम ऑल्टरनेट टाइम। बट उनके माइंड में बहुत इफ्स एंड बट्स, ओके मुझे अब ये करना है, अब मुझे ये करना है, तो our kids are actually filled with too many of the ideas and the thing that we can achieve all those ideas in one go। और हमारा जवाब क्या होता है? टेक द फर्स्ट स्टेप, द रेस्ट इज इजी। बट वी एक्चुअली थिंक दैट रेस्ट और टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज इजी फॉर आवर चाइल्ड? वही एक स्टेप मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल है, टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड टेक दैट फर्स्ट स्टेप। एग्जाम्पल मैं अभी देती हूँ दैट 1 महीना पहले मुझे ही लगा ठीक है आई मस्ट गो, अब मौसम ठीक हो गया है, गो फॉर रनिंग, गो फॉर अ जॉग। स्टार्ट किया कि ओके मॉर्निंग में मैं जाऊंगी 7 to 8। इट वॉज वेरी टफ इवन टू स्टैंड अप इन द मॉर्निंग। नहीं अभी फिर से सर्दी लग रही है, सो इट वॉज सम अनरियलिस्टिक गोल फॉर मी। सो टेकिंग फर्स्ट स्टेप, टेक फर्स्ट स्टेप बट द स्मॉलर स्टेप्स। तो हम अगर अपने बच्चों को ये स्टार्ट कर दे सिखाना दैट टेक दिस फर्स्ट स्टेप बट द रेस्ट इज easy, but to take the first step we require some guidance for them। so हम उनको कुछ good reasons दे सकते हैं, good valid reasons, so that they are motivated throughout। क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में yes enthusiasm, आज ये चैप्टर then you know एक दिन सपोज वो स्कूल नहीं गए, 2 टॉपिक्स मिस्ड, ठीक है मैं कल कर लूंगी। अगले दिन 2 और टॉपिक्स मिस्ड, मैं अब कर लूंगी। तीसरे दिन 2 और टॉपिक्स मिस्ड, व्हाई? बिकॉज पीछे वाला लैग होता जा रहा है, क्लटर होता जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस बच्चा खुद साइकोलॉजिकली डीमोटिवेटेड होता रहता है। सो इट्स फाइन, देयर कैन बी सम अर्जेंसी जिसमें हमारे बच्चे कभी छुट्टी ले सकते हैं, कभी इरेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि हर दिन अच्छा नहीं होगा, कुछ दिन बुरे भी होंगे। तो कुछ गुड रीजंस अगर हमें मिल जाए जिससे हम बच्चों को मोटिवेट कर सकें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों को ये समझाइए दैट जस्ट रिवॉर्ड योरसेल्फ, डू स्मॉलर टास्क, हैव टाइम लिमिटेड अप्रोच, डू वेरी स्मॉल टास्क। ओके आज मैं 2 घंटे पढ़ लूंगी, एंड 2 घंटे भी मे बी बहुत ज्यादा हो किसी बच्चे के लिए, नहीं पढ़ना अच्छा लगता, मुझे गाने सुनने अच्छा लगता है एज अ स्टूडेंट, तो ठीक है आप हाफ एन आवर गाना सुनो, आप 1 आवर गाना सुनो, एंड डू व्हाट इज गुड फॉर यू। बट यू नो हमें बच्चों को ये भी समझाना है एवरी टाइम प्लेइंग एंड प्लेइंग डजंट बी गुड, एवरी टाइम स्टडिंग ऑल्सो, आई विल से बीइंग अ टीचर ऑल्सो is not good, so you have to maintain a balanced life। So giving a reward, tomorrow I have a test, I'll prepare for 2 hours, and then after the test I'll go and have my gulgappas। This can be a small reward for the child which he can give to himself। आज मैं खेलने नहीं जा सका, ठीक है I'll prepare myself for my test tomorrow, कल मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा खेल लूंगा, दिस इज रिवॉर्ड फॉर माई सेल्फ। सो अगर हम ये बच्चों को बताएं बिना प्रेशराइज किए, आज आप खेलने नहीं जाओगे, कल आपका टेस्ट है, फिर अगले दिन अगर पेरेंट या टीचर ये कहता है नहीं टुमारो ऑल्सो यू हैव टेस्ट, आप नहीं जाओगे, इससे बच्चों में एक मोनोटनी, एक फियर, एक डर, एंड सिर्फ एक सेट, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। समटाइम्स यू नो मच ऑफ स्टडी ऑल्सो स्पॉइल्स द स्टूडेंट, व्हाट आई फील। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उनको एक खुद ही सेट लाइन कर लें, आज हमें एक रिवॉर्ड देना है अपने आप को, कैसे? आज मैं पढ़ी, कल आई गो फॉर गोलगप्पा, अदरवाइज आई गो फॉर अ पिज्जा ट्रीट। आई नो इट्स अनहेल्दी बट ठीक है, एट टाइम्स इट विल डू। देन I'll start with the third point first, accomplishment। So if you know we have, suppose मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, नीचे से माउंट एवरेस्ट दिखेगा नहीं, पहले तो ऊपर अगर देखोगे तो टारगेट सीम्स टू बी ओ गॉड अ ह्यूज माउंटेन, नो, ड्रीम। यू नो दैट व्हाइल मूविंग अप, जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे, जस्ट थिंक ऑफ दैट व्यू, द सेटिस्फैक्शन विच इट विल गिव यू। सो इफ यू आर गोल ओरिएंटेड, आपका गोल अचीव करने के लिए यू हैव अ सिंगल माइंडेड मोटिवेशन, मुझे ऊपर चढ़ना है, we'll have many struggles, we'll have many obstacles while climbing that mountain, but the target is always a fruitful one। कर्म का फल मीठा होता है। तो अगर हमारा टारगेट हमारे माइंड में होगा तो हो सकता है वो व्यू, वही मोटिवेशन
आपके चाइल्ड के लिए एक अच्छा हो. We can't give benchmark to our all the kids. Okay, have 90% of your goal. No, not always. Have 80%, then compete with yourself. अपने आप से compete कीजिए, अपने साथ वाले बच्चे से नहीं. ये बहुत जरूरी है बच्चों के माइंड में लाना, that compete and break your own record every day and have small targets on everyday basis. And to accomplish that, we have a second point here, a step closer to bigger goals. As I said, the first step to walk through the stairs is very important. So, and if we approach with the step by step approach, that will be much beneficial for our students also. Now, let's have some introspection and some view about कि हमारे कौन कौन से रियलिस्टिक गोल्स हो सकते हैं. सबसे पहले, व्हाट डू मीन बाय रियलिस्टिक इज, बच्चे बना लेते हैं ओके टाइम टेबल बनाया, एंड आई नो यू एज टीचर्स, यू एज पेरेंट्स माइट बी नोइंग, हमारा बच्चा बड़े प्यार से, इवन वी बहुत प्यार से हम टाइम टेबल सेट करते हैं, 6 to 7, 7 to 8 we'll do this, 8 to 9 we'll do this, then we just tear it off, crumble the paper, throw it away. क्यों? उस दिन नहीं हो पाया, ठीक है, a new timetable comes. But again, the motivation is required. So motivation sabse pehle, that we must start with the realistic goals. As I said earlier, first take the smaller steps. Have the achievement thinking that yes, आप वो achieve कर सकते हो. अगर वो achieve कर लिया तो ठीक है, आपके मन में एक satisfaction होगा. The first and the best one which I find is eat that frog that hops a lot. एक फ्रॉग आपके हाथ में नहीं आता, जंप करता रहेगा एक साइड से दूसरे साइड, दूसरे से तीसरी साइड एंड ऑल. एंड अगर आपने उस दिन का वो फ्रॉग पकड़ लिया तो इट मीन्स यू हैव अकम्प्लिश्ड द बेस्ट of your task today. So eat that frog means that try to prioritize your tasks. बच्चों को भी कहिए वो prioritize करें. जो सबसे difficult task है उसको पहले पकड़े, so that they are set in their minds. मन से भी शांत है, पीसफुल. हमारा सबसे मेजर काम हो गया ये तो, क्योंकि बच्चे ये कहते हैं तो चुटकियों का काम है दे, and it goes true for us also. So eat that frog, a nice book also written. And then we have tried different approaches. One size does not fit all. एक ही approach एक ही जने के लिए लग सकती है maybe, but एक ही approach for everyone in the class if we think no. Some students may take time to complete one topic in 2 to 3 hours. उसी टॉपिक को करने में एक बच्चा हो सकता है 15 मिनट लगाए. हमारा कुछ मैथ्स की कैलकुलेशंस हो सकती हैं. मैथ्स की कैलकुलेशन में कई मेंटल मैथ्स करके दे कैन जस्ट गिव इट इन आंसर इन फ्यू सेकेंड्स. सम टेक्स टाइम, बट इट इज ओके, बिकॉज हर एक को अपना पता है दैट व्हाट पोटेंशियल दे हैव, एंड वी हैव टू एनकरेज आवर किड्स दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग द टॉपिक थ्रू दिस वे, आप इस वे से नहीं कर रहे, इस तरीके से नहीं कर पा रहा हूं मैं, फाइन, बी ओपन टू देम, ट्राई विद अनदर मेथड, because maybe that approach is not fitting with him. तो उसको आप भी गाइड कीजिए कि ओके अगर आप ये चैप्टर नहीं कर पा रहे, मे बी ही रिक्वायर्स गाइडेंस, मे बी ही रिक्वायर्स दैट, सो दैट उसका एक लेवल डाउन ना हो जाए फॉर व्हाट ही वाज डिटरमिन्ड टू डू. देन वी हैव टाइम लिमिटेड अप्रोच. ये नहीं कि ठीक है ये मैं काम, जैसे बच्चे को एक सब्जेक्ट दिया, सपोज वी से साइंस, आज साइंस के ही हैज टू ड्रॉ 3 or 4 डायग्राम्स. उसने वो 3-4 डायग्राम के कहा ठीक है मैं रात तक कंप्लीट कर लूंगा, वो रात फिर नहीं आती कई बार, या मैं कल कंप्लीट कर लूंगा, एज वी से टुमारो नेवर कम्स अगेन. सो हैव सम लिमिटेड टाइम अप्रोच कि मैं 7 o'clock तक ये काम कंप्लीट करूंगा और मैं विद इन 1 hour, दैट इज 7 to 8 ये काम कंप्लीट करूंगा. बिकॉज इसके लिए ये जरूरी है. एज अगर मैं ये भी कहूं कि ओके हम कहेंगे बच्चा पढ़ लेगा एंड दैट टू इन द कंफर्टेबल जोन, दैट गोज मच डिफरेंटली. बच्चा पढ़ेगा जरूर, बट यस हमें ये भी समझाना है बच्चे को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ा सा जस्ट इसमें हार्डवर्क करना पड़ेगा कि वो प्रायोरिटाइज करे कि कौन सा प्रायोरिटी है, एंड ईट द मेजर डिफिकल्ट, द जबरदस्ती वाला एंड जो हमें तंग करता है वो वाले टास्क को कंप्लीट करे.
फिर वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लगाए, एक से नहीं समझ आया ठीक है, द टास्क डजंट एंड्स हियर, नहीं समझ आया मैं नहीं समझूंगा, नो, मोटिवेट, नहीं समझ आया ठीक है बेटा अब दूसरी चीज से ट्राई कीजिए, यू कैन ट्राई मे बी स्टडी ग्रो, अदरवाइज इफ यू नीड गाइडेंस ask from the teacher, ask from me, or we can have help. And time limited approach, टाइम फिक्स कीजिए, बच्चे को बताइए, नॉट अ मेजर टाइम टेबल ऑफ फुल डे, बट ठीक है मुझे 2 hours पढ़ना है, 2 hours खेलना है, और whatsoever according to the child's comfort, but yes, the focus must be with a balanced one. All work, all study, that's also not possible. So a balanced time limited approach भी बहुत जरूरी है. एंड जो 4th नंबर पे है, हमारी जो 4th अप्रोच है वो है ब्रेक द टास्क डाउन इनटू मैनेजेबल चंक्स. इतना भारी काम, ओके आज मैं साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा 15 आवर्स बैठकर, नॉट रियलिस्टिक अप्रोच, नॉट पॉसिबल. वी हैव टू चंक डाउन आवर सिलेबस. हमें अपना भी काम, सपोज मुझे आज एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, बच्चे को बताइए बेटा ये प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होगा, ओके टाइम डिवाइड कीजिए, because it will be monotonous for us also, for students, for बच्चा कि वो बैठा है 15 घंटे में, no one can complete it one go. Okay, he has to manage the time. Just divide that project into 3 simpler types or 4 simpler steps so that उसका वो टास्क है ना उसको प्रेशराइज करे और वो अपना बैलेंस खेले, खाना भी खाए, इंजॉय भी करे. बिकॉज जैसे हमारे साइंस में कहा जाता है साइंस वाले बच्चे भाई मूवी नहीं देखने चाहेंगे, साइंस वाले बच्चे वोंट एंजॉय, ये साइंस वाले बच्चों के मन में रहता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. इफ यू आर बैलेंसिंग इट, बट with the thing that yes, on daily basis you must be dividing your task. आप रोज के अपने कुछ things prioritize करो, and don't be a multitasker. आज 5 काम करने हैं, 5 ही complete करूंगा, no. Even with us it happens. आज 5 काम करने, मे बी 2 अच्छे हुए, 3 नहीं हुए, ठीक है we'll do it tomorrow. But have a calm, cool and composed one. So these were the 4 approaches, and next I'll ask Pooja ma'am to take over for the Archana ma'am to take the session. Thank you so much everyone. Thank If you you very have any much. query, we'll be there at the last. Sure. Thank you so much, Jyotika ma'am. It Thank was you so very much, ma'am. wonderful. You know, बहुत short और crisp way से आपने बड़े अच्छे shortcuts बताए. हालांकि कई चीजें हमें पता होती है, but we do not use them, और वो implementation होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. So thank you so much for once again reviving everything. Archana ma'am, over to you. Let's see what we can learn. Thank you, Pooja ma'am. Before I start, first, big thanks to All India Educators Forum and Matthew Thomas sir for giving us this platform, and special thanks to Pooja ma'am for all her support and guidance. So, मैं अभी ज्योतिका मैम ने जो डिस्कस किया है, मैं उन्हीं लाइंस पे आगे डिस्कशन करूंगी, and my discussion will be with special focus on the upcoming board exams, कि बच्चों को कैसे मोटिवेट रहना है और to continue to stay motivated throughout the period that they are preparing for the board exams. तो इसके लिए 10 steps, simple steps outline किए हैं, and वो steps लेने के पहले सबसे पहले हमें बच्चे को अपने आप से पूछना है कि पढ़ाई शुरू करनी है कि नहीं, अभी शुरू करनी है कि नहीं. बच्चे का आंसर अगर हाँ है तब तो ठीक है. कुछ बच्चों का आंसर ना हो सकता है, वो कहें कि नहीं अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है. तो कहीं ना कहीं एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स हमें उन्हें समझाना है कि पढ़ाई पहले से शुरू करनी है, जिससे कि टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द एग्जाम्स बहुत ज्यादा बर्डन ना हो जाए, सिलेबस इतना ज्यादा ना हो जाए कि हम उसको कंप्लीट ना कर सकें. सेकंड हमारा है कि I'm sorry.
सेकंड है कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी, बच्चे को पढ़ाई क्यों करनी है। तो वी शुड आस्क द किड्स कि अपने रीजंस आइडेंटिफाई करें। कुछ बच्चे पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, उनका मेन फोकस होता है कि भाई बाय एंड लार्ज हमें आगे अपना अच्छा करियर बनाना है। कुछ का होता है कि हमें एग्जाम में बहुत हाई परसेंटेज लानी है। ये सारे इंटर रिलेटेड है। कुछ को लगता है कि भाई हमारे माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए, तो वी नीड टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड। और कुछ को लगता है कि अगर हम आज पढ़ लेंगे तो आगे हमें रिग्रेट नहीं होगा, लेटर लाइफ में हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, एंड देयरफॉर देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ रिग्रेटिंग कि उस समय अगर हमने पढ़ लिया होता तो आज हम स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। तो फॉर ईच ऑफ दीज रीजंस दैट दे हैव आइडेंटिफाइड, उन्हें मन लगा के पढ़ना है, एफर्ट डालना है, खूब लगन से पढ़ना है, विद डिटर्मिनेशन, विद परसिस्टेंस, जिससे कि उनके हाई मार्क्स आए, हाई परसेंटेज आए, अच्छा रिजल्ट होगा, पेरेंट्स भी खुश होंगे। आप कहीं ना कहीं जो भी कैरियर ऑप्शन आपने चूज किया है, उसके लिए जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं, उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपकी लर्निंग बेटर होगी, आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, जो कैरियर ऑप्शन आपने चूज किया है उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे, और लेटर इन लाइफ आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप है, वंस हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें पढ़ाई शुरू करनी है, और ये हमारे रीजंस है, ये जो रीजंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इसको बच्चों से कहना चाहिए कि कहीं पे लिख के रख ले अपनी स्टडी टेबल के सामने। ये हमेशा उनके सामने होना चाहिए, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक मेन रीजन है, वन मेथड टू स्टे मोटिवेटेड। उसके बाद हमें अपने गोल्स सेट करने, बच्चों को अपने गोल्स सेट करने। सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर 10th के भी बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनको सोचना है, 10th के बच्चों को सोचना है आगे हमें क्या करियर लेना है, अकॉर्डिंगली कौन सी स्ट्रीम या कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं अब। एंड जो 12th के बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया होगा इंजीनियरिंग करनी है, मेडिसिन करना है, या सीए के लिए ऑप्ट करना है। तो अकॉर्डिंगली उसको अचीव करने के लिए, ये गोल अचीव करने के लिए आगे हमें क्या क्या करना है, एंड कीपिंग दीज लॉन्ग टर्म गोल्स इन माइंड, हमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टर्म गोल्स भी अपने सेट करने हैं। वेरी शॉर्ट हो जाते हैं हमारे डेली, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। शॉर्ट टर्म हो जाएंगे वीकली टू मंथली गोल्स। और ये जो गोल्स हैं इनको कहीं पे लिख के रखना है एक शीट ऑफ पेपर पे। अगेन ये शीट हमारे सामने रहनी चाहिए, हमारी स्टडी टेबल पे सामने रहनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जब भी पढ़ाई करने बैठे वो सामने उन्हें दिखे। एक और एस्पेक्ट है इसका कि गोल्स करते जब हम सेट करते हैं तो वी हैव टू अवॉइड मिस्टेक्स इन सेटिंग द गोल्स। सो गोल्स नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। जैसा ज्योतिका मैम ने कहा कि बच्चे डिसाइड कर लें, अच्छा कल हमें ये करना है। जैसे बच्चे ने डिसाइड किया कल हम ये सब्जेक्ट करेंगे, तो ये बड़ा नॉन स्पेसिफिक हो जाता है। बच्चे को डिसाइड करना है कि कल हम इस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करेंगे, या चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 करेंगे। दैट इज मोर स्पेसिफिक। या बच्चे ने अगर रिविजन कर लिया है तो उसे डिसाइड करना है अच्छा कल हम इस सब्जेक्ट के 2 मॉडल टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। सो दोज बिकम आवर स्पेसिफिक गोल्स। एंड नेक्स्ट, द गोल्स नीड टू बी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग मतलब कि गोल इतने इजी नहीं होने चाहिए कि आपको कुछ एफर्ट ही नहीं पुट इन करना पड़े। इसका मतलब वो कोई गोल नहीं है, वो तो कुछ इट इज समथिंग वेरी इजी, आपको कुछ करना ही नहीं है उसके लिए। गोल ऐसा सेट करना है जिसको अचीव करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़े, एफर्ट पुट इन करना पड़े। सो गोल्स नीड टू बी चैलेंजिंग एंड दे आल्सो नीड टू बी अचीवेबल। गोल्स जब हम सेट कर रहे हैं तो हमें अपना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, हमारी स्टडी हैबिट्स, हमारी कैपेसिटी क्या है, कितने घंटे हम लगातार पढ़ सकते हैं, ये सब
कंसिडर करके हमें गोल सेट करने हैं कि हम इनको विद इन दैट टाइमलाइन अचीव कर पाए। अगर हमने लेट्स से कॉमर्स के लिए अगर बच्चे ने सेट कर लिया गोल कि कमिंग वीक में मैं मैथ्स और अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी, और बच्चे ने साल भर, ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे इनके लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, बच्चे ने साल भर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो देयर इज नो वे कि वो इस वीक में इसको अचीव कर पाए। तो बच्चे ने जब गोल सेट करना है तो कीपिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड ये गोल सेट होने हैं। तो हमने लिख लिया कि क्यों हमें पढ़ाई करनी है, क्यों हमें लगन के साथ, क्यों हमें एफर्ट पुट इन करना है फॉर अ बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट, एंड फिर हमने अपने गोल सेट कर लिए और ये दोनों चीजें हमारी टेबल पे हमारे सामने होनी चाहिए, मतलब बच्चे के सामने होनी चाहिए। ये हो जाए उसके बाद they have to cultivate, the children have to cultivate a growth mindset. As teachers हमें पता है ज्यादातर बच्चों का बड़ा फिक्स माइंडसेट होता है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, खासकर मैथ्स के लिए बोले बच्चों का रहता है मैथ्स तो मुझसे नहीं होती है, या मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, या ये सब्जेक्ट मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। कोई भी सब्जेक्ट होगा, जो बच्चे साइंस और मैथ्स में अच्छे होते हैं उनको, जैसे कभी कभी 10th के बच्चों को सोशल स्टडीज नहीं पसंद आता है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट। व्हाट डू दे मीन बाय डिफिकल्ट, उसके भी अलग अलग वो है एस्पेक्ट्स है। बट कमिंग बैक टू दिस, ये जो बिलीफ है हमारे मन में या बच्चों के मन में कि ये हमसे नहीं हो सकेगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये उनकी ग्रोथ को लिमिट करती हैं, एंड दीज लिमिटिंग बिलीफ्स हैव टू बी चैलेंज्ड। उसको चैलेंज कैसे करें, उनको किसी शीट ऑफ पेपर पे लिखें, डेली उसको देखें एंड टेल योरसेल्फ, बच्चे को अपने आप को बोलना है कि हम ये कर पाएंगे, आज नहीं कर पाएंगे, कल नहीं कर पाएंगे, पर हम शायद परसों कर पाएंगे, नेक्स्ट वीक कर पाएंगे। So we have to teach the child to be very positive. The word can't should not be used. In fact, they should use the word yet more often. I cannot do this yet, but tomorrow I may be able to do it, or day after I may be able to do it, or maybe next week I will be able to do it. And we have to teach them that there is nothing that cannot be done with hard work, persistence and determination. तो ये हमें बच्चों का ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेट करना है। उसके बाद बच्चों को अपनी स्टडी अप्रोच आइडेंटिफाई करनी है जो उनके लिए सूटेबल है, और ये हर बच्चे की अलग हो सकती है। कुछ बच्चे इंडिविजुअली अकेले पढ़ना चाहते हैं, ज्यादातर बच्चे अकेले ही पढ़ते हैं। कुछ बच्चों का होता है कि वो किसी क्लोज फ्रेंड के साथ पेयर अप करके पढ़ते हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि एक ग्रुप हो, उस स्टडी ग्रुप के साथ वो पढ़ाई करें। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल चाइल्ड, वो कैसे पढ़ना चाहता है। अकेले पढ़ना चाहता है तो बहुत अच्छा है, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, पर उसमें एक लिमिटेशन है कि आपको कोई पुश नहीं कर सकता पढ़ने के लिए। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, जैसे बच्चे एक अपने क्लोज फ्रेंड के साथ पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना टारगेट बनाया है कि कल हम ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट डे जब ये बच्चा कर रहा है, एक चैप्टर उसने कंप्लीट कर लिया, सेकंड चैप्टर करने में वो थोड़ा स्लो हो रहा है, अगर वो अकेले कर रहा है तो वो सोचेगा अच्छा आज नहीं करेंगे, इसको कल पूरा कर लेंगे। पर अगर उसे पता है कि फ्रेंड के साथ वो शाम को यही चैप्टर्स दोनों डिस्कस करेगा, तो उसे लगेगा कि नहीं फ्रेंड कर लेगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको वो पुश मिलेगी कि नहीं मैं भी आज ही पूरा कर लूं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि एंड ऑफ द डे और व्हेनेवर दे हैव डिसाइडेड ऑन द टाइम, व्हेन दे सिट डाउन टुगेदर फेस टू फेस और वर्चुअली एंड दे आर डिस्कसिंग इट, तो वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, अपने डाउट्स शेयर करते हैं, एक दूसरे को सजेशन देते हैं, एक दूसरे को अपना ओपिनियन देते हैं। उससे लर्निंग बहुत बेटर होती है, बहुत थरो होती है। एंड द सेम अप्लाइज टू अ स्टडी ग्रुप। जब स्टडी ग्रुप में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इनिशियली तो वो इंडिविजुअली पढ़ते हैं, पर जब वो स्टडी ग्रुप में बैठ के उसी
टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को या चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, उसके भी वही एडवांटेजेस होते हैं. दे आर शेयरिंग देयर नॉलेज, दे आर शेयरिंग देयर डाउट्स और दे आर शेयरिंग देयर पर्सपेक्टिव. हर कोई किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रॉब्लम को अपने ढंग से अप्रोच करता है. मेरी एक अप्रोच है, दूसरे की दूसरी अप्रोच है, तो हमें ये भी पता लगता है कि दूसरा स्टूडेंट कैसे अप्रोच कर रहा है, तो सबका पर्सपेक्टिव समझ में आता है. अगेन लर्निंग बहुत अच्छी होती है, बहुत थरो होती है. स्टडी ग्रुप नॉर्मली मैक्सिमम 4 to 5 बच्चों का होना चाहिए एंड सब बच्चे फोकस्ड होने चाहिए एंड हार्ड वर्किंग होने चाहिए. So once the child has decided on the study approach, whether he wants to study individually, या pair up with a close friend, or be a part of a study group, उसके बाद उसको अपना study area prepare करना है. अब by and large, individually, या even if you are studying in as a pair or as a part of a study group, इंडिविजुअल स्टडी तो बहुत जरूरी है एंड इंडिविजुअल स्टडी ज्यादातर घर में ही होती है. तो उसके लिए हमें अपने लिए एक स्पेस निकालनी है घर में, एक रूम जो क्वाइट हो, बहुत क्लटर्ड नहीं हो, बहुत ज्यादा सामान नहीं हो उस रूम में, क्लीन हो और वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जहां पे हम पढ़ाई कर सकें आराम से, जहां ज्यादा फैमिली मेंबर्स का डिस्टर्बेंस ना हो. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस. आजकल के बच्चों के तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ गैजेट्स टू द मोबाइल फोन. मोबाइल फोन में सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम. अब इसको कैसे अवॉइड करना है, ये बच्चों के ऊपर है. अगर उनकी इतनी विल पावर है कि उन्होंने उठा के अपनी गैजेट्स और मोबाइल कहीं रख दिया है या पेरेंट्स को दे दिया है कि अब हम इसे एग्जाम के बाद ही लेंगे, या तो वो करें, या फिर एक और ऑप्शन है कि एग्जिट कर जाएं, खासकर इन सोशल प्लेटफॉर्म से. नहीं तो वो टेम्पटेशन रहता है, अच्छा इसने क्या पोस्ट किया, अच्छा इस फ्रेंड ने क्या पोस्ट किया, मैं जरा सा देख लूं. वो जरा सा देखने में कितना टाइम वेस्ट हो जाता है. एक और सजेशन है कि आप एग्जिट नहीं करिए, आप अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए. और जो पासवर्ड आप नया बनाएंगे वो इतना ऐसा बनाएं कि वो आपको इजीली याद ना हो. उसको एक शीट ऑफ पेपर पे लिख के वो शीट अपनी कबर्ड में डाल दीजिए गैजेट्स के साथ. मोबाइल फोन शायद आप नहीं रख पाए कबर्ड में. यू नीड टू interact with your friends, your classmates, maybe even with your teachers. तो वो शायद आप नहीं रख पाए, तो बेटर है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अपना पासवर्ड चेंज करके और उस पासवर्ड को लिख के कबर्ड में डाल दें. सो दैट इज टू अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. और वंस आपने अपना स्टडी एरिया तैयार कर लिया है, उसके बाद आप अपना स्टडी शेड्यूल बनाएंगे. अगेन कीपिंग इन माइंड आपका पास ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आप कितनी देर लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं और आपकी कैपेबिलिटी क्या है. कुछ बच्चों का होता है कि वो लग के मे बी 4 घंटे 5 घंटे और वो बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, और कुछ बच्चों का होता है कि उनको काफी शॉर्ट इंटरवल्स पे ब्रेक चाहिए. पर बाय एंड लार्ज जनरली 45 मिनट्स टू 1 आवर का स्टडी सेशन और उसके बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक अच्छा रहता है. वो शेड्यूल आपको बनाना है. अगर आपको लगता है कि आप 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप उतना लंबा स्टडी सेशन रखें और उसके बाद मे बी 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक रखें. Also you need to take time out for exercise. Exercise can be any light exercise or even a walk. मील्स के लिए आपको टाइम सेट असाइड करना है. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डू लिस्ट आपकी होनी चाहिए अलोंग विद द शेड्यूल. टू डू लिस्ट में कि अच्छा कल हमने अपना टाइम सेट किया. एक और चीज जो आई वुड लाइक टू मेंशन, जब हम अपना शेड्यूल बना रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड वेदर आप लेट नाइट स्टडी करते हैं या अर्ली मॉर्निंग्स, मतलब अर्ली राइजर हैं, तो अकॉर्डिंगली आपके स्टडी सेशंस शेड्यूल होने चाहिए. टू डू लिस्ट बच्चों को अक्सर लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे कुछ नहीं होता है, पर इसका मेन एडवांटेज है कि आपने जैसे लिखा है कल मुझे चैप्टर
2 और 3 करना है इस सब्जेक्ट का, परसों मुझे अनदर सब्जेक्ट के चैप्टर लेट्स से 1 and 2 करना है, तो आपके पास रहता है कि ये और ये मेरे वीकली शेड्यूल में मैंने कवर कर लिया है और अभी ये टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स या चैप्टर्स बाकी हैं। सो आपको पूरा कंप्लीट पर्सपेक्टिव रहता है कि क्या क्या मुझे करना है, कितना मैं इस वीक कर पाऊंगा और उसके बाद कितना और बचेगा। एंड सबसे बड़ी बात कि यू हैव टू हैव द सेल्फ कंट्रोल एंड द सेल्फ डिसिप्लिन टू फॉलो द शेड्यूल स्ट्रिक्टली। पढ़ाई जब हम कर रहे होते हैं या बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर उनको बीच बीच में लगता है कि कल जो मैंने पढ़ा था वो तो मुझे याद ही नहीं है, ये पॉइंट मैं भूल गया, ये पॉइंट मैं भूल गया। तो बच्चों को हमें बताना है हाउ टू बूस्ट देयर मेमोरी पावर, एंड उसको बूस्ट करने के लिए healthy eating habits, avoiding all kinds of junk food, eat fruits, vegetables, जो भी health food है, junk food avoid करें, and at least 8 to 9 glasses of water daily होने चाहिए intake, because otherwise it can lead to dehydration, and उसमें क्या होता है कि हमारे body functions weak हो जाते हैं, उसमें फिर हमारी पढ़ाई अफेक्ट हो जाएगी, बच्चों की पढ़ाई अफेक्ट हो जाएगी। ऑल्सो 7 to 8 hours of sleep। अक्सर जब एग्जाम पास आ रहे होते हैं बच्चे 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो सुबह जब वो उठते हैं तो रिफ्रेश नहीं रहते। 7 to 8 hours of sleep के बाद हमारी ब्रेन रिलैक्स हो जाती है, एंड व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग बहुत रिफ्रेश्ड फील करते हैं। एंड दैट इज व्हाई टू डू लिस्ट जब हम बना रहे हैं तो उसमें अर्ली मॉर्निंग हमें ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स या ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स रखनी चाहिए, बिकॉज उस समय हमारी ब्रेन पूरे 100% कैपेसिटी पे फंक्शन कर रहा होता है, एंड एज डे प्रोग्रेस करता है थोड़ी थोड़ी उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम होने लगती है। Every day at least 20 minutes we should set aside for light exercises, or we should go for a walk. Also play brain games, crossword puzzles हैं, सुडोकू है, और आजकल तो और आ गए हैं, वर्डल is the latest craze। तो कोई भी इस तरह के गेम्स जो आपके माइंड को एक्टिव रखें, आपकी ब्रेन शार्प हो, आपकी मेमोरी शार्प हो। These steps can be taken to boost your memory power. Also, while the kids are studying, उनके मन में वो नेगेटिव वो आते हैं कि what if I'm not able to complete my syllabus before the exams? What if I'm not able to do well in this paper? अगर ये पेपर मैं ठीक से टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो ये फेलियर जो होता है ये किसी तरह आपको बांध देता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एक क्लिप आर्ट है, इसमें ये फियर हमको एकदम बांध के रख देता है, but somehow we have to ride over that fear, we have to use that fear and we have to rise above it and move forward. तो एक ऑप्शन है, अगर आप मेडिटेट करते हैं 5 to 10 minutes मेडिटेट करिए, नहीं मेडिटेट कर सकते हैं तो फिर आप शांति से बैठिए, एकदम शांत 5 मिनट 10 मिनट, टेक अ डीप ब्रेथ। उसके बाद आपकी टेबल पे आपके सामने आपने लिख के रखा है पढ़ाई हमें क्यों करनी है और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स, खासकर हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, वो पढ़िए एंड ऑटोमेटिकली you will start working and you need to work very hard again. So set the ball rolling by working hard. Okay. जब हम पढ़ रहे होते हैं, let's say कोई difficult chapter हमने किया या कोई difficult concept हमने कर लिया, we need to reward ourselves each time we complete a task or achieve a goal. Not regular goals कि आज ये करना है, not that. पर जब हमको लगता है कि हमने कुछ major achieve किया है, अपनी ability के हिसाब से हमें लगता है कि हमने कुछ major achieve किया है, we need to reward ourselves. अब reward किस तरह से करना है? Have a favorite snack, कोई music सुन लीजिए, कोई interesting video देख लीजिए,
फ्रेंड्स के साथ फेस टू फेस या मोबाइल पे बात कर लीजिए. But remember, once you have achieved a goal that you found very difficult, उसके बाद जो आपको mental satisfaction मिलता है, that is the biggest reward. ये रिवॉर्ड्स भी आप अपने को दे सकते हैं, पर उस रिवॉर्ड से ज्यादा अच्छा कोई रिवॉर्ड नहीं है. मेंटली यू फील सो गुड कि अरे वाह, आज हमने ये कर लिया है, ये तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था पर ये हमने कर लिया. अब मैं इस टॉपिक के, इस कॉन्सेप्ट के या इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं. आप में वो कॉन्फिडेंस आ गया है. ऑल्सो अगर आपने कोई गोल नहीं अचीव किया है, आपने आज के शॉर्ट टर्म गोल्स या कल के जो आपने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स डाले वो आपने अचीव नहीं किए हैं, आप किसको ब्लेम कर रहे हैं? आप पहले बैठ के लिख लीजिए क्यों नहीं अचीव हुए. रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 उसको रख दीजिए. थोड़ी देर में फिर उनको पढ़िए. जब आप पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आधे से ज्यादा रीजंस जेन्युइन रीजंस नहीं है, वो सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने की. एंड दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर. जब हमारा कुछ करने का मन नहीं है तो वी लुक फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस कि भाई ये हो गया था. आप अगर घर में पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहेंगे कि हमारे ब्रदर ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, सिस्टर ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, या कोई गेस्ट आ गए थे और थोड़ा शोर हो रहा था इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया. बट आई एम नॉट डिनाइंग कि जेन्युइन रीजंस नहीं हो सकते हैं, पर बाय एंड लार्ज वी फाइंड कि जो हम रीजंस दे रहे हैं वो जेन्युइन नहीं है. दे आर जस्ट वेज फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन. So you have to hold yourself responsible. You have to hold yourself accountable for this. Also, ये जो steps हमने बताए हैं, ये इनके साथ साथ ये ऐसा नहीं है कि एक पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया. शुरुआत हमें सबसे पहले स्टार्ट कर देना है. तो ये जो steps हैं, ये या तो बैक टू बैक चलेंगे या साइमल्टेनियसली चलेंगे. सबसे डिफिकल्ट होता है टू गेट स्टार्टेड. तो बिना, अगर आपने प्लानिंग नहीं भी की है, आप स्टार्ट कर दीजिए, कुछ तो आप कर पाएंगे. देन प्लानिंग कैन टेक ओवर, शेड्यूल फिर आप बना लेंगे, पर स्टार्ट कर दीजिए. एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो वो मोमेंटम बिल्ड हो जाता है, उसके बाद आप आगे करते रहेंगे. ऑल्सो ये होता है टाइम टू टाइम कि हमें लगता है कि हमने वी नीड टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट. कभी कभी बच्चों को लगता है उन्होंने 5 दिन बहुत लगन से पढ़ लिया, बहुत मेहनत से पढ़ लिया, छठे दिन उनको लगता है कि अब इतने 5 दिन तो मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई कि अब आज मैं ब्रेक ले लेता हूँ या आज मैं ब्रेक ले लेती हूँ. तो अगर एग्जाम्स क्लोज हैं, they are just round the corner, so it is not advisable. At the most what they can do is they can take 2 or 3 hours of break. उससे क्या होता है कि ब्रेन थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, मेंटली आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, और उसके बाद आप बैक, यू आर रिफ्रेश्ड. एंड उसमें एक ये भी है कि आप जब वो रिलैक्सेशन का अपने को टाइम दे रहे हैं तो उसमें कुछ प्रोडक्टिव करें. प्रोडक्टिव में है go for a walk, do some exercise, listen to maybe a TED talk, anything motivating, anything that can motivate you. इससे क्या होता है कि हम फिजिकली और मेंटली rejuvenate हो जाते हैं, re-energize हो जाते हैं, so that when we come back again, we are totally refreshed, relaxed, और हमारी learning better होगी. एक और उसका ऑप्शन है जब हमें हमारी मोटिवेशन थोड़ी लो जा रही है, आपने अपनी टेबल पे सामने लिख के रखा है व्हाई आई नीड टू स्टडी. आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं वो देखिए, फिर से पढ़िए, टेक स्टॉक ऑफ दैट एंड जस्ट डू इट. गेट स्टार्टेड एंड डू इट. सो these are the 10 steps जो हम बच्चों को बोल सकते हैं. Again, as I repeat, they are not steps to be taken in a sequential order. ये back to back simultaneously उनको लेना है. और जब बच्चे motivated रहेंगे,
ऑटोमेटिकली दे गेट स्टार्टेड, जो एफर्ट वो पुट इन कर रहे हैं वो सही दिशा में होते हैं, वो डिटर्मिन रहते हैं कि नहीं हमें ये करना ही है। और जब वो उतने डिटर्मिन रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तो उनका माइंड स्टेबल रहता है, भागता नहीं है इधर उधर, ये करना है ये करना है ये करना है, फोकस्ड रहते हैं, उनकी मेमोरी अच्छी रहती है, पॉजिटिव रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। और ये सब अगर होता है तो बच्चे ऑटोमेटिकली अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। So with that, I come to the end of my discussion on staying motivated 24/7, and this was with special focus on the upcoming board exams. So Thank you so much, Archana ma'am. Thank you so much. Again, I would say बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं, लेकिन उन चीजों को रेजुवनेट टाइम बाय टाइम करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई कुड सी हमारे साथ बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिफोर एंडिंग अप टुडेस सेशन, मैं एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहूंगी। एनीबडी कैन आंसर इन चैट बॉक्स। आई वुड लव टू हियर द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन चैट बॉक्स। मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है बच्चों का फियर क्या होता है? व्हाट इज द मेन फियर ऑफ एवरी स्टूडेंट? What is the main fear of every student? Let me have the answer in chat box. As an educator, what do you think? What is the main fear of every student? Just one word answer. Okay, very good. Let's see. See, these answers are coming to everyone. Okay. I could see Dhanya Arunji saying fear of failure, and this from MI11X, this number, they're saying fear of failure, and these two answers are matching. Why matching? Because this is the perfect answer. Fear of failure is the only fear amongst our children. उनको बड़ों से डर नहीं लगता, उनको पढ़ने से डर नहीं लगता, खेलने कूदने से डर नहीं लगता। उनको पढ़ाई में कब उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है? जब उनको फेलियर से डर लगता है। So before ending today's session, just last video I would like to show you all, ताकि हम ये देख सकें कि उस fear of failure के साथ हम कैसे फाइट कर सकते हैं, और उसको फाइट करने के लिए हमें क्या चाहिए और क्या चीज हमें मोटिवेट कर सकती है। Let's
So dear audience, I would like to know from you that what you have learned from this video. I'm going to unmute you all because I want कि हमारी ऑडियंस इस बार बोल के बताए कि उनका इस वीडियो से टेक अवे क्या था. हम अपना पर्सपेक्टिव ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें. आवर स्टूडेंट्स, एनी वॉलंटियर हु वुड लव टू से समथिंग. वी आर एजुकेटर्स, आई गेस हम बोल के बता सकते हैं. एनीवन? Yes, we are having so many people over here. Any volunteer? मीना चौहान मैम हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं. मीना मैम, we would love to hear you. Okay. Anyways, जहां तक मैं इस वीडियो को समझ पाई हूँ, I feel like we should tell our children that till the moment we have lives, struggles are not going to end. जिस दिन struggles खत्म होगी, उस दिन life खत्म हो जाएगी. So we need to understand this, that we cannot afford to demotivate ourselves. We cannot afford to say this thing that we should not have any problems. हमारी life में problems आएंगी, लेकिन हमने उनके साथ लड़ना कैसे है, हमने उनके साथ मोटिवेट कैसे होना है, that is something very very important for all of us to know. और यही एक चीज है जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं. as an educator, as a teachers, हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अपने बच्चों को ये बताना कि how you can stay motivated in every hour, how you can be always confident. चाहे आप फेलियर के साथ फेस हो रहे हो, चाहे आप सक्सेस को फेस कर रहे हो, but how you can just go ahead with your stay motivations 24/7. So this is something very important. So this is इसी my... में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी. Yeah, sure. ये एक और भी सिंबलाइजेशन था दैट आप अपने फियर से भागते रहते हैं, बट कभी ना कभी वो फियर आपके सामने आएगा ही आएगा, एंड यू हैव टू ओवरकम दैट. हम अपने फियर से जितना भागेंगे उतना डर, बट ये भी हमने देखा एंड में वो खुद अपने फियर से ही हम अपने आप लड़ सकते हैं. अदर्स विल बी आवर गाइडिंग लाइट्स, बट लड़ना हमें ही है, अपने ही फियर से, और एंड में जीतना है. Yes, exactly. Thank you so much for adding on such beautiful sentence, Jyotika ma'am. Thank you. So thank you so much, dear audience. Still, we are very appreciating for your presence. आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इतने experienced होने के बावजूद, you took out some moments to learn something more. So thank you so much to our each participants, and on behalf of AIF platform, मैं thanks करना चाहूँगी ज्योतिका मैम और अर्चना मैम का भी, जिन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े, और इतने अच्छे पॉइंट्स हमें, इतने अच्छे एस्पेक्ट्स जो हम बच्चों की लाइफ में लेके आ सकते हैं हमें. थैंक यू सो मच अर्चना मैम, थैंक यू ज्योतिका मैम. Thank you so much, Pooja ma'am. Thank you, ma'am. You are again one of the motivator for us, the one who is tackling many multitasker. Thank you so much, ma'am, for having us. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Archana. Thank you. So dear audience, मैंने लिंक डाल दिया है सर्टिफिकेट का. I hope all of you have got it. You can surely feed the certificate link form and you'll be getting certificate immediately. So thank you so much. इसी के साथ we'll be just signing off, but we'll be meeting you once again with our last webinar of this month. I'm saying this month, right? So last webinar of this month, we'll be connecting with you guys with Archana ma'am once again. So thank you so much once again. A final bye to all of you.